discuss this fire safety protocols in a brief manner, and then in the next class we'll be going much deeper. Okay, so first procedure. So first you have to get the clearance from the fire service, whoever is in charge, like the chief fire officer. So you have to get the clearance from them that you is first is your that building is fire in fireproof or not, or fire safe or not. Okay. So you go with the furnish your plan, and then you show that what are the fire exits and all those plans, and then through that they will approve it according to their norms. Okay. So the chief fire officer should shall examine these plans to ensure they are in accordance with the provision of whatever the fire safety and means required by the laws. Okay. And shall forward these plans to building sanctioning authority. So first it will be cleared by fire officer, and then it will be cleared by the building sanction authority. Now, after completion of firefighting installation as approved and duly tested, certified by the licensed fire consultant or architect, then the builder shall approach the chief through the concerned authority for obtaining clearance for fire safety and means of escape point of view. Means of escape means whenever there is a fire or there is an emergency situation, from where that whoever occupants are there, how they will escape that particular area, in a particular building. So that means of escape they have to check. That the concerned authority shall ensure that clearance from chief fire officer has been obtained as per the clauses are there. I'll talk about it through using that national building code as well as through this particular bylaw. So this we are talking about that model bylaw I have already uploaded. So on receipt of above request, the chief fire officer shall issue the no objection certificate from fire safety and means of escape point of view. After satisfying that the entire fire protection measures are implemented and functional as per the approved plan, means they will check that fire installations are working or not. Means whenever there is a in the fire situation, there should be that a plan should be established and through which exit and that exit of access are there or not, or there is any doorway, exit doorway are there or not, through which that occupants can release can at least exit as soon as possible using the whatever the clearance distance. Let's say you are in some room, from there you go through that exit access, and then you ultimately uh, coming to the street. So that escape route should be as clear as possible, obstruction free. And there is also the means that distance, that how much travel you have to go from your farthest point of your room to that exit point. That is also given that this much should be there. So these are the requirements are there. Also, there may be if it is a especially industrial building, there should be that weight rises, meaning there should be available that whenever firefighting teams are coming, they should have that for every floor. They should come to that building. They connect that building with their that fire hose, and they can every floor they can access through their that weight risers. Okay, meaning that if they will come with their fire hose, they will connect with the building already established firing, and that system is there. So they will just put their hose to that particular system, and from that they have their own that you have seen I think that red color that pipes are there in the buildings. Okay, so through that they will go means for each floor they can give water required water to that particular floor. Means if there is in third floor there is a pipe that they can access directly through those pipes that red pipes you have seen.
through that pipe, they can means the firefighting team will go there, and that water will flow from their that firefighting trucks, and then it will go directly to that particular place. If it is water or other material, they will directly can access from that particular floor level if it is already there in the building. Okay. So any deficiency observed during the course of the inspection shall be communicated to the authority for rectification. So those are the things. So on the basis of undertaking given by the building, the officers shall renew the fire clearance in respect of the different buildings. If it is a public entertainment building, assembly, hospital, hotel, or so okay. So fire resistance ratings for various types of construction for structural non-structural members shall be given in table 1 of part 4. So you see in the table 1 what is the construction. Then the following section means of access, provision of exterior open space around the building कितना होना चाहिए, exit requirement क्या होना चाहिए, type of exit, number of size of exit, arrangements. So those all those things we have to refer to the National Building Code Part 4. So we'll go to now Part 4 for other things. So basically the exit requirement, what are the means of access, fire resistance types of construction or building components are there. Then fire escapes or external stairs. The fire escape shall not be taken into account while calculating the number of stairs for building. ये एकदम अलग से होना चाहिए. This fire escape rules. That is not in the fire escape shall not be in the while calculating number of stairs for a building. All fire escapes shall be directly connected to the ground. Entrance to the fire escape shall be separate and remote from internal जो staircases है. The route to the fire escape shall be free of obstruction at all times, except doorway leading to the fire escape, which shall have the required fire resistance. मतलब तुम्हारा जो भी डोर है वो एटलीस्ट फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए कि बाकी सारी चीज मतलब बर्न आउट हो जाने से भी वो पर्टिकुलर जो मतलब डोर वे है इट शुड रेजिस्ट एज मच एज फायर एज मच एज पॉसिबल कि ज़्यादातर लोग वो उधर से निकल जाए बिफोर इट कम टू दैट पॉइंट. तो तुम्हारा जो भी डोर हुए है जैसे एग्जिट हो रहा है फायर रेजिस्टेंट इट शुड बी मतलब एज फायर रेजिस्टेंट एज पॉसिबल. So fire escape shall be constructed for a non-combustible materials, and fire escape stairs shall have straight flight not less than 125 centimeter wide with 25 centimeter trails, rises not more than 19 centimeter. So it is given कि उसका जो staircase का मतलब dimension क्या होना चाहिए. Also handrail shall be at a height not less than 100 centimeter. Fire escape staircase in the to be business buildings above 24-meter height shall be fire tower. In such a case, width of the less than no combustible shall be allowed in the fire tower. What is fire tower? Also हम लोग को मतलब जो नेशनल बिल्डिंग कोड में उसको भी दिया हुआ है कि वो व्हाट इज नेशनल मतलब व्हाट इज फायर टवर. तो तुम्हारा फायर एस्केप क्या होना चाहिए, तो बेसिक जो दिया हुआ है कि जो एक्सटर्नल स्टेयर्स कैसा होना चाहिए उसका मतलब ठीक है. देन the spiral stairs, the use of spiral stairs shall be limited to low occupant load to building. कि बहुत जगह में क्या है एस्केप जो रूट्स होता है उसमें जनरली स्पाइरल स्टेयर्स दे रहता है, तो बोल रहे हैं अगर लो ऑक्यूपेंट लोड है तभी ये सही है, मगर ज़्यादातर के लिए तुम्हारा जो जनरल जो एक्सटर्नल जो स्टेयर्स होते हैं कीप इट लाइक दैट. The external enclosing walls of the staircase shall be of the brick or RCC construction having fire resistance of not less than 2 hours. तो जब भी फायर रेजिस्टेंस का बात आता है कोई भी मटेरियल का, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कितना आवर तक बिफोर इट फुल्ली बर्न आउट कितना आवर्स तक इट कैन टेक दैट फायर ऑफ पर्टिकुलर इंटेंसिटी का, और कितना कितना फायर तुम दे रहे हो कितना जूल किलो जूल पर मीटर स्क्वायर में.
या फिर जो या फिर कितना कैलोरी का तुम फायर एनर्जी दे रहे हो पर मीटर स्क्वायर एरिया में विथ पर्टिकुलर इंटेंसिटी। तो उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी कितना फायर एनर्जी की वजह से कितना आवर तक वो जो भी मटेरियल है वो मतलब बिफोर फुल्ली बर्न आउट वो कितना देर तक उसको सह सकता है। सो दैट इज ऑलवेज इट इज गिवन इन दैट आवर्स कितना आवर्स तक इट कैन टेक दिस मच इंटेंसिटी ऑफ फायर दिस मच फायर एनर्जी। ठीक है। तो जब भी फायर रेजिस्टेंस का बात आता है देयर इज ऑलवेज दे कीप द यूनिट्स इन आवर्स। सो having fire resistance of not less than 2 hours. So all enclosed staircase shall have access through self-closing door of 1 hour fire resistance. तो जब भी तो fire resistance का बात आएगा they will give it in 1 hour. So there is always specific कि कितना energy क्या है. So but all enclosed staircase shall have access through self-closing door जो है. This shall be single swing door opening in the direction of the escape. ठीक है जो staircase. The door shall be fitted with check action door closes staircase जो भी staircase का जो डायमेंशन दिया हुआ है देन रैम्प्स जो होता है रैम्प का क्या डायमेंशन होगा लिफ्ट होने से क्या प्रोविजन होगा लिफ्ट का तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा फाइल लिफ्ट ओके। अभी ये दिख रहा है ना हेलो। Yes, sir. तो मॉडल लॉज में दिया हुआ कि तुम जो भी बाकी जो एग्जिस्ट जो भी होना चाहिए शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। उसका जो पार्ट 4 है दैट इज योर फायर एंड लाइफ सेफ्टी पार्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू डिटेल्स में कि बाकी जो फायर सेफ्टी का क्या होना चाहिए इतना डिटेल्स में ज़रूरी नहीं है कि अभी के लिए जस्ट तुम बेसिक जो नॉलेज जिस बेसिक जो मतलब टर्मिनोलॉजी क्या है कौन सा क्या है वो जानने के लिए इतना एकदम डायरेक्ट डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। तो लास्ट टाइम जैसे बोल रहे थे व्हाट इज बिल्डिंग दे हैव ऑलरेडी गिवन व्हाट इज बिल्डिंग जैसे हाँ combustible material में तो the material which either burns itself or adds heat to fire when tested for non-combustibility in accordance except जो भी according to the 4.1 जब जाएंगे उसमें देखेंगे। तो material which either burns itself or adds heat to the fire उसको बोल रहे हैं combustible material जो खुद से burn होता है या फिर it can add to a fire। That is your combustible material। covered area तो ठीक है। Okay, downcomer. What is downcomer? The arrangement of the firefighting within the building by means of downcomer pipe that are connected to a terrace tank through terrace pump, gate valve और non okay। जो मतलब ऊपर तुम्हारा सोचो टेरेस के ऊपर तुम्हारा मतलब पानी का टैंक है उधर से जो पाइप्स नीचे आता है विच इज कनेक्टेड टू मतलब डिफरेंट वाल्व के साथ कनेक्टेड है तो वो जो पाइप्स है जो sorry जो total arrangement है that is known as the your down pump। So it is fitted with inlet at ground level for charging water by pumping from up। तो तुम्हारा क्या है तुम्हारा नीचे से पंप it is also fitted with the inlet connection at ground level for charging with water by pumping from fire service appliances and air is ये जो टोटल सिस्टम है इसको बोल रहे हैं डाउन पंप। मतलब ऊपर से मतलब ऊपर टेरेस का टैंक है तो नीचे से पानी जाके जब भी फायर सर्विस के लोग आ रहे हैं तो वो पानी डायरेक्टली वो जो फायर फाइटिंग पाइप से ऊपर जाएगा जो डाउन कमर पाइप बोल रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो पानी ऊपर जाएगा एंड देन इट विल मतलब उससे दे विल यूज दैट वाटर टू मतलब जो फायर फाइटिंग के लिए दे विल यूज। Then dry riser, arrangement of firefighting within the building by means of vertical rising mains not less than 100 so diameter का landing valve on each floor, which is on a drive but is capable of being charged with water usually by pumping from 5 SM
सो इट इज ए डाउन कमर पर टेरेस टैंक, ओके। ड्राई राउसर में क्या है, इसमें इसमें जैसे टेरेस का टैंक के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज डाउन कमर। इसमें कोई टैंक के साथ जुड़ा नहीं है, जस्ट पाइप से, जो ड्राई पाइप से तुम जब भी बाहर से मतलब ये कोई भी फायर ट्रक आ रहा है, दे विल यूज दिस एज फॉर, मतलब जो बोल रहा कि फायर फाइटिंग के लिए दे यूज। Emergency lighting, the lighting provided for use when supplied to the normal lighting fails. तो इमरजेंसी लाइटिंग, जब भी नॉर्मल लाइटिंग फेल्स होगा तो कोई कारण से, तो इमरजेंसी लाइट जल जाएगी, सो दैट इज इमरजेंसी लाइटिंग। A complete but discrete emergency lighting installation from the standby power source to the emergency lighting lamp, for example, self-contained emergency luminaire or circuit from the central battery network। तो ये क्या होगा, जब भी तुम्हारा ऑलरेडी अगर करंट चला गया, तो जो स्टैंड बाय मोड में कोई अगर करंट रहा और बैटरी सिस्टम जो भी है, उससे इमरजेंसी का लाइटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली विल कम, मतलब उस टाइम में जलना चालू होगा, जब तुम्हारा बाकी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाए। Now, escape lighting क्या है? That part of the emergency lighting which is provided to ensure that escape route is illuminated at all material times. For example, at all times when persons are on the premises, and either for the whole building or for the escape route at least. Escape lighting क्या है? तुम्हारा at least जो emergency lighting which is provided to ensure that escape route at least, जहाँ escape route के अंदर जो lighting होगा, that is escape lighting. Fire door, a fire resistive door approved for openings in fire separation. मतलब just, मतलब वो जो डोर है, जो जनरली फायर रेजिस्टिव डोर है, जो जनरली मतलब ओपनिंग सेपरेशन में, मतलब जब भी तुम्हारा धुआं आ रहा है या फिर वेंटिंग हो रहा है, उस टाइम पे जो डोर को तुम खोल के उधर से तुम फायर को निकाला जा सकता है या फिर वेंट किया जा सकता है। Then fire exit, a way out leading to an escape route, having panic bar hardware provided on the door. Okay. ओके, तो फायर एग्जिट तुम पहले भी देखो, जो डायरेक्ट जो एग्जिट, फायर एग्जिट से डायरेक्टली जो एस्केप रूट में, रूट की तरफ जा रहे हैं, सो दैट इज योर फायर एग्जिट। और उसमें तुम्हारा क्लिक करने से मतलब वो फायर एग्जिट डोर खुल जाएगा। The fire lift, the lift installed to enable fire services personnel to reach different floors with minimum delay having set up। ये तो सब बिल्डिंग में नहीं होता, मगर दिस इज फायर लिफ्ट, जहाँ से मतलब ओनली फॉर फायर पर्सनल। Fire load के caloric energy of the whole contents content in the space including the facing, मतलब तुम्हारा जितना भी स्पेस वो जलने से कितना एनर्जी आएगा, सो दैट इज योर कैलोरिक एनर्जी। फायर लोड डिवाइडेड बाय द फ्लोर एरिया, कितना लोड है वो हर एरिया के मतलब धीरे से डेंसिटी। The time that a material or construction will withstand the standard fire exposure as determined by fire tests done in accordance with the standard methods। Okay। कितना आवर तक वो सह सकते हैं उसके ऊपर डिफरेंट रेटिंग है, तो उसका बोल रहे हैं फायर रेजिस्टेंस रेटिंग। और फायर रेजिस्टेंस मतलब फायर रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई फॉर स्टेटेड पीरियड सम ऑफ ऑल ऑफ द कैटेगरी, कि वो कोलैप्स ना हो जाए, रेजिस्टेंस टू कोलैप्स, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ फ्लेम और हॉट गैसेस। जब फायर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, कि वो मतलब जल के कोलैप्स होगा या फिर क्या है, तो जब तक वो रेजिस्ट कर पा रहे कि फ्लेम उसको पेनिट्रेट करके बाहर ना निकल जाए। रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर राइज ऑन द अनएक्सपोज अप टू 180 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक तरफ गर्म कर रहा हूँ मगर दूसरे का जो तरफ है जहाँ पे आग नहीं है, जो अनएक्सपोज पोर्शन है, वो कितना गर्म हो रहा है, वो अगर 180 डिग्री से हो रहा है, तो अगर ये तीनों अगर सेटिस्फाई किया और सम ऑफ देम और ऑल ऑफ देम अगर क्राइटेरिया, तो तब तक जो पोर्शन है दैट इज अप टू दैट पॉइंट दे आर सेइंग दैट इज फायर रेजिस्टेंट। अभी तक वो फायर रेजिस्टेंस है कि वो कोलैप्स नहीं हुआ है और उससे पेनिट्रेट करके मतलब फ्लेम जो है वो निकल रेजिस्ट मतलब बाहर नहीं निकल रहा है। और तीसरा क्या है,
तो कि जो अनएक्सपोज फेस है वो 180 डिग्री सेल्सियस से, और एवरेज जो टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर इतना तक वो अगर कर पा रहे कोई एक मटेरियल, up to that point we are saying that okay, up to this is fire resistance। कितना आवर तक कर पा रहे, then it will come to that उसका कितना कैपेसिटी। कि बिफोर दैट वो कि वो 1 घंटे में इतना वो ये तीनों ही मतलब कोलैप्स हो जा रहा है ये हो रहा है, तो तुम बोलोगे तो इसका फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होगा, 1 आवर। सो दैट नाउ व्हाट इज फायर सेपरेशन? The distance in meters measured from the external wall of the building concerned to the external wall of any other building on the site or from other side. The distance in meter measured from external wall of the building concerned to the external wall of any other building on this, okay, from other side from the, okay, मतलब कोई एक बिल्डिंग के साथ दूसरा बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है दैट इज फायर सेपरेशन। वो डिस्टेंस कितना है, मतलब फायर होने से बाकी मतलब बाकी का जो भी आसपास का जो भी बिल्डिंग है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज देयर सेम, दैट इज द फायर सेपरेशन। और अदर पब्लिक फॉर preventing the spread of fire। The wall provides complete separation of one building from another part of the building from or any other part of a building। अगर फायर को जो resist कर रहे जो separate कर रहे, which may cause or assist in the combustion of materials on the side of the opposite open। तो तुम्हारा जो भी वॉल होगा सो वो कुछ नहीं मतलब फायर को सेपरेट कर रहे कि दूसरी तरफ ना चल जाए। दैट इज फायर सेपरेटिंग। व्हाट इज फायर? फायर स्टॉप मतलब फायर रेजिस्टेंट material or construction having fire resistance in concealed spaces or between structure smoke or sling like as per laid down by the title। Okay। तो कोई भी मतलब जो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है जो जनरली क्या होता है इंस्टॉल इन कॉन्सिल स्पेसेस और बिटवीन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग टू प्रिवेंट प्रोपागेशन होने से जो रोक रहा है उस पर्टिकुलर मटेरियल को बोल रहे हैं फायर स्टॉप। Or is a fire tower, a enclosed staircase which can only be approached from various floors through landings or lobbies separated from both the floor areas and the staircase by fire resistant doors and open to the outer air। Okay। तो फायर टावर क्या है मतलब पास का जो इनक्लोज स्टेयरकेस है जिस जिसको मतलब उसको लोग बोल रहे फायर टावर, जिसके थ्रू तुम डायरेक्टली ओपन स्पेस में जा सकते हो और जो हर फ्लोर से एक्सेसिबल है और जिसका जो डोर है जिसके थ्रू तुम फायर टावर में जा रहे हो वो फायर रेजिस्टेंट है। तो दैट इज फायर टावर जो तुम्हारा इनक्लोज स्टेयरकेस है। वाल सेम। Now, what is building to ठीक है what is horizontal exit? An arrangement which allows alternate egress मतलब है तुम्हारा exit मतलब जो departure point। An arrangement which allows alternative मतलब exit point from a floor to another floor at or near the same level in adjoining। So कोई एक arrangement कोई भी horizontal exit मतलब जहाँ से तुम दूसरे फ्लोर में जा रहे हो जिस exit point से, so that is horizontal। Means of egress क्या है? A continuous and unobstructed way of travel from one point in the building to the place of comparative safety। तो तुम जहाँ जहाँ पर भी जो पोर्शन एरिया है जो तुम जब भी तुम्हारा रूम से निकालो कोई भी तो तुम उस होके जिस पर्टिकुलर एरिया से जाके तुम एग्जिट पॉइंट में जा रहे हो या फिर तो वो पोर्शन पे ही बोल रहे मीन से पहले या फिर एटलीस्ट जहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे सेफ जगह है दैट इज बेसिंग दैट इज द मीन्स ऑफ एग्जिट। जो पोर्शन जो अनऑब्स्ट्रक्टेड हुए है ट्रेवल का दैट इज द मीन्स ऑफ occupancy। The principle of occupancy for which a building or part of the building is intended। So, no good।
किस पर्टिकुलर ऑक्यूपेंसी के लिए तुम बोल रहे ऑक्यूपेंट का क्या पर्पस है कोई बिल्डिंग का, सो वो उसके बोल रहे ऑक्यूपेंसी के। Now the pressurization. The establishment of a pressure difference across a barrier protect the stairway, lobby, escape route or roof of a building from smoke penetration. तो, तो जब भी स्मोक हो रहा है तो स्मोक तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा जिस प्लेस से बन रहा है उस प्लेस से वो लोग लोअर डेंसिटी की तरफ जाते रहेगा, है ना। स्मोक का जहाँ पे डेंसिटी जहाँ है उससे कम डेंसिटी की तरफ वो मूव करेगा, जहाँ पे स्मोक नहीं, जो ओरिजिनली जो जिस जहाँ से स्मोक हो रहा है वो पोर्शन तुम्हारा हाईली डेंस है, डेंस बाय स्मोक है, और जहाँ पे खाली है वो क्या करके उस तरफ मूव करेगा। एज वेल एज डायरेक्शन अपने एयर का डायरेक्शन भी क्या है प्लस। तो ये जो तो दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है कि एक जगह पे बहुत प्रेशर है ऑफ स्मोक, मतलब एक जगह में जहाँ पे स्मोक है, तो और नेक्स्ट पोजीशन जहाँ पे स्मोक नहीं है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस हो गया स्मोक का, एंड देन जब भी प्रेशर डिफरेंस हो देन इट विल मूव। तो इसको ही बोल रहे प्रेशराइजेशन। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए बैरियर और प्रोटेक्ट है कि तुम प्रेशर का मतलब कहीं पे आग आग लगा तो तुम वेंटिंग बाजे एग्जिट पॉइंट्स ऐसी जगह में रखे कि वो इट कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर रूट, क्योंकि उधर खाली है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या होगा, जो स्मोक इट विल फॉलो दैट रूट टू गो आउटसाइड, क्योंकि तुम्हारा आउटसाइड मतलब कोई जो भी है आउटसाइड जो एग्जिट पॉइंट्स है उसका क्या होगा, मतलब प्रेशर बहुत कम होगा रेदर देन जैसे पॉइंट पे तुम्हारे घर का कहीं पर भी अगर ये हो मतलब गैस जल रहा है, तो इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो दैट रूट टू डायरेक्टली। तो वो जो प्रेशर डिफरेंस एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रेशराइजेशन। वो कैसे किया जाएगा, तो दैट इज नोन एज प्रेशराइजेशन। एंड देन the pressure difference between a pressurized space and the area served by pressurized escape route, that is तो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाए कि तुम्हारा हवा मतलब एक तो जो गैस हो रहा है और जहाँ से तुम निकल रहे हो जो भी तुम्हारा एग्जिट पॉइंट है, ये दोनों का जो प्रेशर का जो चेंज मतलब जो डिफरेंस होगा दैट इज द प्रेशराइजेशन लेवल। ठीक, a means of escape onto the roof of a building where roof has access to it from ground, so that is roof exit. Then the orbit portion, stack pressure, pressure difference caused by temperature difference. Okay. Now the travel distance, the distance to be traveled from any point in a building to a protected escape route or external escape route or final exit। जो बोल रहा था लास्ट टाइम कि तुम्हारा घर का जो रिमोटेस्ट पॉइंट से अल्टीमेटली गो टू दैट एस्केप रूट, जो पोर्शन जाने का जो डिस्टेंस है दैट इज ट्रैवल डिस्टेंस। The ventilation, supply of an outside air into the removal of the inside air from the enclosed space, ventilation also. Now venting fire removal, the process of inducing heat and smoke to leave a building as quickly as possible by such paths that lateral spread of fire and heat is checked and the firefighting operations are facilitated and minimum fire damage is caused। तो उसको बोल रहे वेंटिंग फायर, जब तुम्हारा आग कोई एक पोर्शन से निकल के बाहर जा रहा है तो उसको बोल रहे वेंटिंग फायर। अगर वो धुआं चला गया है कोई लोकेशन से देन तो कोई भी जो फायर फाइटिंग पर्सनल दे कैन कम एंड दे कैन मतलब बाकी जगह को देख के उसको डैमेज को ये कर सकते हैं, है ना। तो दैट इज नोन एज जो 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 क्या बोलते हैं जो process of inducing heat and smoke to leave a building as quickly as possible by such paths, जिस पाथ से वो जा रहे हैं सो दैट इज नोन एज द डेंटिंग फायर। वेट राइजर क्या है, जहाँ पे हर टाइम पानी मतलब रहेगा,
ड्राई राइजर में क्या है, पानी नहीं रहता, पानी बाहर से दिया जाता है। और वेट राइजर में इट इज परमानेंटली चार्ज विथ वाटर फ्रॉम प्रेशराइज सप्लाई। तो कभी भी चाहिए होगा तुमको बाहर से पानी का जरूरत नहीं है, मतलब फायर हाउस मतलब फायर फाइटिंग, तो डायरेक्टली द फायर फाइटिंग पर्सनल विल कम एंड दे विल यूज दैट, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फ्लोर में पानी चाहिए तो दे कैन यूज दैट फ्लोर, दैट पर्टिकुलर पाइप से उस जो भी एरिया को तुम अगर फायर फायर से बचाना है तो तुम उस पर्टिकुलर वेट राइजर सिस्टम को यूज कर सकते हो। ड्राई राइजर में क्या है, बाहर से पानी देना पड़ रहा है, वेट राइजर इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद द प्रेशराइज्ड सप्लाई, so that is the difference between dry and the wet राइजर। प्रिवेंशन के हिसाब से दे हैव क्लासिफाइड द बिल्डिंग, वो तो ऑलरेडी पता है, तो फिर भी दे हैव कौन सा ग्रुप में क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ए का, ग्रुप ए में भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी सब डिविजन है, कौन सा क्या है, जैसे जैसे लॉजिंग को A1 बोल रहे हैं, टू फैमिली प्राइवेट डोरिंग को A2, डॉर्मेटरीज को A3, अपार्टमेंट हाउस को A4, होटल्स को A5, होटल स्टार होटल जो है A6, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर मार्क्स वो डिटेल की कॉन्सेप्ट इसको क्या बोल रहा है। सेम तरीके से एजुकेशनल बिल्डिंग में P1 बोल रहा है कि स्कूल, तो उसके लिए जो भी अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, so जैसे P2 इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी का C1 हॉस्पिटल हो गए, कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन हो गए, पुणे मेंटल इंस्टीट्यूशन हो गए C1 C2, so ऑल इज लाइक उसको हर ग्रुप से डिफरेंट बिल्डिंग का उस ग्रुप के भी सब डिवीजन है, कि तुम अगर आइडेंटिफाई कर सको पर्टिकुलर कौन सा ग्रुप, मतलब कौन सा बिल्डिंग का कौन सा पर्टिकुलर चीज को तुम बता रहे हो ना, उसके हिसाब से दे हैव कैटेगराइज कि फायर जोन्स कौन सा है, जैसे the city or area under the jurisdiction of the authority shall for the purpose of the code be demarcated into distinct zones based on fire hazard inherent in the building। ऑलरेडी जिसका फायर hazard का क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से वी हैव डिवाइडेड सम जोन्स लाइक हियर, जोन कितना, 3 जोन, फायर जोन 1, फायर जोन 2, फायर जोन 3, कि इसमें कौन सा जैसे ग्रुप ए सी, इस ग्रुप को बोल रहे इट विल बी अंडर फायर जोन 1। उसके बाद जो सब डिविजन E2 से E5 है, मतलब लेबोरेटरीज, कंप्यूटर, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जो है, सो दोज आर विल बी इन द जोन नंबर 2। जो जनरल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वो सब आएगा फायर जोन 1, फायर जोन 2 में आएगा E2 E5, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का G1 to G2 का पोर्शन, except the high hazard industrial zone, the subdivision G3. This will be under fire zone number 2. Then fire zone number 3, this shall be hazardous industrial buildings। ज़्यादा मतलब फायर जोन 1 मतलब थोड़ा कम कम प्रोन टू तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, फायर। उसके बाद फायर टू थोड़ा सा और भी ज़्यादा, फायर थ्री और भी ज़्यादा, मतलब मच मोर रिस्की है, तो जितना रिस्की हो रहा है उतना उसका जून नंबर ज़्यादा है, क्योंकि हैजर्डस बिल्डिंग में वो ज़्यादा कॉम्बस्ट होकर ज़्यादा दूर तक फैल सकता है, क्योंकि तो जोन 1 देन जोन 2 देन जोन 3। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये नेक्स्ट क्लास में अभी अच्छे से बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये देख सकते हैं।
उसके बाद जो लाइफ सेफ्टी का पार्ट है कि जनरल एग्जिट जो रिक्वायरमेंट जो बोल रहे थे मॉडल लॉ में एग्जिट रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए कि जैसे एन एग्जिट में भी डोरवे कॉरिडोर कौन से पे एग्जिट बोल रहे हैं स्टेयर केस इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेयर केस और बारंदा lifts or escalators shall not be considered as exit every exit or access or exit access or exit discharge shall be continuously maintained free of all obstruction. Every building meant for human occupancy shall be provided with exits sufficient to permit safe escape of occupants in case of fire or other emergency. In every building or structure, exits shall comply with the minimum requirements की क्या accessible होना चाहिए. No building shall be altered or reduce the number of जो width को कमाना नहीं चाहिए जो भी exit का जो width दिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए. Exit shall be clearly visible and the route to each exit shall clearly marked and sign posted to guide कि कौन सी तरह से जाना चाहिए. And the size and the colors of the exit sign shall be in accordance with कैसे करना है and the color of the exit sign shall be green, not red, green. Green color से तो जो ग्रीन जो साइन होगा एग्जिट इट शुड बी ऑफ ग्रीन. उसके बाद ऐसे भी दिया हुआ कि तुम्हारा जो लिमिनिसिटी है मतलब वो कितना होना चाहिए कि द फ्लोर्स ऑफ एरियाज कवर्ड फॉर मीन्स ऑफ एग्जिट illuminated to values not less than कि 10 लाख से 10 लाख से कम होना चाहिए. मतलब तुम्हारा जो ल्यूमिन होता है ना कितना जो लाइट का जो ल्यूमेन होता है मतलब कितना ल्यूमिन कर रहा है एक जगह को तो उसका जो यूनिट है उसको लक्स बोला एलयू एक्स का कैंडल बोला जाता है. तो वो उसके नीचे नहीं होना चाहिए इतना उसमें इतना विजिबल होना चाहिए. एंड इन ऑडिटोरियम्स थिएटर्स कॉन्सर्ट में क्या होना चाहिए द एल्यूमिनेशन ऑफ फ्लोर एग्जिट एक्सेस में बी रिड्यूस. जब भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है उसमें जनरली क्या होता है कि एल्यूमिनेशन ऑफ फ्लोर एग्जिट का जो चीज़ वो थोड़ा कमा जा सकता है मगर नॉट लेस देन 2 लाख से कम हो हाफ फीट कैंडल से कम हो. So this is also good. So fire doors with 2 hour fire resistance shall be provided at appropriate places along the escape route and particularly at the entrance to lift lobby uh, where funnel or flow effect may be created in using an upward spread of fire to prevent or fire. तो फायर डोर्स का मतलब रेजिस्टेंस 2 आवर तक होना चाहिए. ऑल एग्जिट शैल प्रोवाइड कंटिन्यूअस मीन्स ऑफ एग्रेस टू द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जाके तुम कहीं पे फिर से घूमना पड़ेगा ये कर उसमें एक कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए कि एक से तुम जा रहे हो तो कंटिन्यूअसली तुम जाके डायरेक्टली ओपन स्पेस में जा सकते हो. तो उसमें दूसरा मतलब अल्टरनेट रूट नहीं होना चाहिए कि ये जाके दो डोर आगे कि तो तुम कहाँ से जाओगे ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब एकदम फंक्शन जब तुम डायरेक्ट जा रहे हो तो तुम वही रूट है तो डायरेक्टली जाके तुम निकल सकते हो. Exit shall be so arranged that they may be reached without passing through another occupied area. वही. मतलब डायरेक्टली तुम बाहर जा रहे हो ऐसा नहीं कि दूसरा कोई ऑक्यूपाइड मतलब जहाँ पे दूसरा रूम के अंदर से जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए. डायरेक्ट रूम के से बाहर होगा तो बाहर उसके बाद एकदम डायरेक्ट. दिस आर सम जनरल एग्जिट रिक्वायरमेंट्स. इस टाइप का उसमें दिया हुआ है कितना लोग मतलब पर पर्सन के हिसाब से कितना एरिया होना चाहिए ऑक्यूपेंट में फ्लोर एरिया यूजेस पर पर्सन कितना. उसके बाद देखो ट्रैवल डिस्टेंस क्या हुआ है तो मतलब तुमको रेसिडेंशियल एरिया में मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस कितना दे सकते हो. आगे मतलब टाइप कंस्ट्रक्शन के बारे में नेक्स्ट बोलेंगे. मतलब 30 मीटर तक तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस दे सकते हो कि तुम कोई एक मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग में सबसे कॉर्नर में बैठा हुआ है उस रूम से निकल के अल्टीमेटली तुम जब एग्जिट में आ रहे हो जो एग्जिट डिस्चार्ज है मतलब जो तुम बाहर का जहाँ से दरवाजे से निकल रहे हो और ओपन स्पेस में आ रहे हो
वो डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस मतलब तुम्हारा 30 मीटर से मतलब कम होना चाहिए, 30 मीटर मैक्सिमम। तो तुम एजुकेशनल बिल्डिंग में भी 30, अगर टाइप 3 4 जो ज़्यादा मतलब टाइप 1 2 ये सब क्या है, ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस मतलब उसमें मतलब इतना कॉम्बस नॉन कॉम्बसेबल एरिया है, मतलब ज़्यादा ये होने का चांसेस नहीं फायर फैलने का, तो उसमें तुम ज़्यादातर ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस डाल सकते। अगर उसका कंस्ट्रक्शन टाइप 3 4 जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फायर को मतलब कॉम्बस्ट होने का बा स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस है उसमें, और मैक्सिमम जो ट्रैवल डिस्टेंस कम होना चाहिए 22, मतलब तुम्हारा रूम से निकल के अल्टीमेटली ट्रेस जाए तो उसमें 22.5 मीटर का दूरी होना चाहिए। डिफरेंट बिल्डिंग के डिफरेंट है, नंबर ऑफ एग्जिट कितना है। All buildings which are 15 meter in height or above, and all buildings which used as the educational assembly buildings, and okay, shall have a minimum 2 staircase होना चाहिए, minimum of 2 staircase shall have, they shall be of enclosed type, at least one of them shall be on external walls of the buildings and shall open directly to the exterior internal open space, मतलब तुम्हारा प्लेस ऑफ सेफ्टी में जाने के लिए उसमें दोनों में एक एटलीस्ट बाहर जाने तक तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं। Every exit doorway shall open to an enclosed stairway or to a horizontal exit or passageway providing continuous protected means of egress, मतलब बाहर तक जा रहे हो वो दूसरा रूम पे नहीं होना चाहिए, दूसरा एग्जिट वे में होना चाहिए, पैसेज में कॉरिडोर में होना चाहिए। No exit doorway shall be less than 1000 mm in width except assembly buildings where door width shall be not less than 2000। अगर जनरल बिल्डिंग है उसमें जो एग्जिट डोर है जहाँ से ज़्यादातर लोग जा रहे हैं वो एटलीस्ट 1000 मिलीमीटर से बड़ा होना चाहिए। अगर असेंबली बिल्डिंग है जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं उसमें और भी ज़्यादा 2000 मिलीमीटर मतलब 2 मीटर तक से ज़्यादा होना चाहिए, और हाइट भी तुम्हारा 2000 मतलब 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। Exit doorways shall open outwards, that is away from the room, but shall not obstruct the travel along any axis. No door, when opened, shall reduce the required width of the story landing less than up। तो तुम्हारा जो भी दरवाजा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा width को कम करे। Exit door shall not open immediately upon a flight or stairs. Landing equal to at least width of door shall be open। मतलब डायरेक्ट जाके ही तुम्हारा स्टेयर केस नहीं होना चाहिए, एक लैंडिंग का पोर्शन होना चाहिए एटलीस्ट कुछ पोर्शन का, क्योंकि दरवाजा खोलने के बाद भी तुम्हारा स्पेस होना चाहिए कि कोई आके एक दो लोग आके उधर खड़े हो उसके बाद दे स्टार्ट मतलब नीचे जाए। Exit doorway shall be openable from side which they serve without the use of key, की के बिना खोल सकते साइड से। Mirrors shall not be placed in exit way or exit to avoid confusion regarding direction, कोई मिरर नहीं होना चाहिए। तो दिस आर सम जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, पैसेजवे में भी क्या क्या इंटरनल स्टेयरकेस यूटीएफ कूलिंग और दिस थिंग्स, ठीक है। तो स्टेयरकेस का टिपिकल डिटेल क्या होना चाहिए जो बोल रहा था, 100 सेंटीमीटर का कि ये हैंड रेल्स होना चाहिए, देखो 1000 मिलीमीटर स्टेयरकेस का। तो दिस आर मतलब स्टेयरकेस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इट विल बी बेस्ड ऑन तुम्हारा फायर सेफ्टी और लाइफ सेफ्टी के हिसाब से। एक तो एस्थेटिक हो गए मगर बेसिक जो जो भी घर में कहीं सेफ सेफ का बात है, तो बेसिक ये सब चीज़ यू हैव टू कंसिडर बिफोर यूर प्लानिंग, मतलब जब भी प्लान कर रहे हो स्टेयरकेस का भी यू हैव टू गो थ्रू पूरा, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द फायर जो फायर